Pleasant good morning and welcome to Liberian Observers Online. We are live here at the Embassy of the Republic of India, here celebrating the 77th Republic Day 2026, and as we watch, is now the official hosting of flag here by the Indian ambassador. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। So keep following. We are here at the Embassy of India in Liberia, where today is the Republic or 77th Republic Day of India, and it just watched the ambassador to Liberia hosting the flag here. Up next will be a special address by the ambassador. My dear fellow Indians and Liberians, friends of India, आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. A very happy 77th Republic Day of India. I am very happy to see such a large turnout today. Even though today is the first working day of the week, this is reflective of the close bond between India and Liberia. And as you know, Republic Day is a moment to reaffirm our commitment to the values of democracy, unity and peace. Just like we did last year, we have also got published one special supplement by the newspaper Daily Observer. I think that supplement will be coming in some time. I would request all of you to take a copy before you leave. It gives me immense pleasure to share that today's celebration is made special by the presence of the cultural troupe from Liberia under the leadership of the Art and Culture Ambassador Honorable Kekura M. Kamara. Kekura M. Kamara is well known as Malawala Balawala, the lead character in the popular television series of 1980s that was a household name in Liberia and several other countries in the region. The troupe will be traveling to India later this week to participate in the
annual Suraj Kund Art and Craft Mela in Kurukshetra, Haryana. This is the first time that a cultural troupe from Liberia will be visiting India, and it is truly a shining moment in our cultural and people to people connect. Yeah, that's what I was going to tell you, that give them a big round of applause once again. Now, without taking more of your time, I would like to read out the address to the nation by our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, on the eve of Republic Day 2026. I will begin in Hindi and then switch to English subsequently. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दिशा और दशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति के निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश की विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। हमारी भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का यह गीत जनमन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में वंदे येनबोम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय वंदना का स्वर है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 221 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी विशेषकर युवा उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे राष्ट्र गौरव का उद्घोष है। प्यारे देशवासियों, आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों की पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं
अपने अनेक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नव निर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे अपने प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। हमारे प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार हमारी समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। हमारे ऊर्जावान उद्यमी देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जागरूक एवं संवेदनशील नागरिक हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीय हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करते हैं, जो आप सब हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साह पूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहब की सोच के अनुरूप अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र को एक शक्तिशाली आयाम देता है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रही हैं। खेल कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी विमेंस कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया, भारत की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है। ऐसी बेटियों पर देशवासियों को गर्व है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46% है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। समावेशी सोच के साथ वंचित लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 नवंबर को देशवासियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया तथा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में
मनाए गए उत्सव संपन्न हुए। आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता को निखारा गया। विगत वर्षों में सरकार ने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास से देशवासियों को परिचय कराने के लिए संग्रहालयों के निर्माण सहित अनेक कदम उठाए हैं। उनके कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में लगभग 1,40,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अनेक विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऐसे अभियान जनजातीय समुदायों के विकास और विरासत का समन्वय कर रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जन मन योजना के द्वारा पीबीटीबी समुदायों सहित सभी जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण हुआ है। हमारे अन्नदाता किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड हैं। किसानों की परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों ने सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसान भाइयों बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिले, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हो, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है। दशकों से गरीबी के साथ जूझ रहे करोड़ों देशवासियों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाया गया है। साथ ही ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वह पुनः गरीबी से पीड़ित न होने पाए। अंत्योदय की योजना को कार्य रूप देने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिल रही है। गरीब परिवारों के लिए बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने और आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया गया है। गरीबों के कल्याण के हित में किए जा रहे ऐसे प्रयास महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श को कार्य रूप देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। गर्व की बात है कि हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा है। हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं तथा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे युवा स्वरोजगार की सफलता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वजवाहक हैं। मेरा युवा भारत या माई भारत MY भारत टेक्नोलॉजी की सहायता से संचालित एक अनुभव आधारित शिक्षा व्यवस्था है। यह युवाओं को नेतृत्व और कौशल विकास सहित कई क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के साथ जोड़ती है। हमारे देश के स्टार्टअप्स की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को जाता है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर केंद्रित नीतियों और कार्यक्रमों के बल पर देश के विकास को गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। Now I will read in English. Dear fellow citizens, India is the world's fastest growing major economy. Despite global uncertainties, India is recording continuous economic growth. We are moving towards achieving our goal of becoming the world's third largest economy in the near future. By investing in the creation of world-class infrastructure, we are rebuilding our economic strength at a much larger scale. In this journey of shaping our economic destiny, Atmanirbharta and Swadeshi are our guiding principles. The most important decision for the economic integration of the country are independence. The implementation of GST has established the system of one nation, one market. The recent decisions
to make the GST system even more effective will further strengthen our economy. 4 labor codes have been issued in the field of labor reform. This will benefit our workers and will also accelerate the development of our enterprises. Dear fellow citizens, since ancient times, humanity has benefited from our civilization, culture and spiritual traditions. Ayurveda, yoga and pranayama have been appreciated and adopted by the global community. Many great personalities have continuously enriched the stream of our spiritual and social unity. Sri Narayana Guru, the great poet, social reformer and spiritual icon born in Kerala, had said that an ideal place is one where all people live with the spirit of fraternity, free from discrimination based on caste and creed. I will try to express this thought of Sri Narayana Guru in his own words. Jati bhedam mat desham edum ilade sarvavarum sodara tena vaduna matruka sthana manita. It is a matter of pride that today's India is moving forward with new self-confidence, conscious of its glorious tradition. In recent years, sacred sites related to our spiritual traditions have been reconnected with the people's consciousness. It has been resolved to eradicate the vestiges of colonial mindset in a time-bound manner. The tradition of Indian knowledge has a great legacy in the field of philosophy, medicine, astronomy, mathematics, literature and art. It is a matter of pride that efforts like Gyan Bharatam mission are preserving and disseminating the creativity available in the Indian traditions. This mission will carry forward the heritage accumulated in lakhs of invaluable manuscripts of India in modern context. By giving emphasis to Indian languages and the tradition of Indian knowledge, we are providing a cultural foundation to our pursuit of self-reliance. The Constitution of India is now available in all Indian languages, included in the 8th schedule. Reading and understanding the Constitution of India in Indian languages will spread constitutional nationalism among the people and strengthen their sense of pride. The gap between the government and the general public is being continuously reduced. Emphasis is being placed on good governance based on mutual trust. Many necessary rules have been repealed. Several compliance requirements have been eliminated. Our systems have been simplified to help the people. Beneficiaries are being directly connected to facilities through technology. Ease of living is being emphasized with the goal of improving everyday life. Efforts have been made to achieve national goals through public participation over the past decade. Important national campaigns have been transformed into mass movement. Local institutions in every village and city have been made instrument of ushering in progressive change. Building Viksit Bharat is the shared responsibility of all citizens. Society has immense power. Revolutionary changes occur when the efforts made by the government receive active support from the society. For example, our people have adopted the digital payment system on a massive scale. Today, more than half of the world's digital transactions take place in India. From buying goods at the smallest shop to paying for an auto rickshaw ride, the use of digital payment has become an impressive example for the global community. I hope that all citizens will actively participate in achieving other national goals in a similar manner. Dear fellow citizens, last year our country launched precision strikes against terror infrastructure through Operation Sindoor. Terror centers were destroyed and many terrorists met their end. Our self-reliance in the field of defense powered the historic success of Operation Sindoor. At the Siachen base camp, I saw our brave soldiers fully prepared
and motivated to defend the country, even amidst extremely challenging conditions. I also had the opportunity to fly in the Sukhoi and Rafale fighter planes of the Indian Air Force. I saw the combat readiness of the Air Force. I witnessed the extraordinary capabilities of the Indian Navy's indigenously built aircraft carrier INS Vikrant. I also sorted in the submarine INS Wagshir. Based on the strength of Army, Air Force and Navy, people have complete trust in our defense preparedness. My dear fellow citizens, protection of environment is a high priority today. I am proud that India has steered the global community in many areas related to the environment. A lifestyle is harmony with nature has been a part of India's cultural traditions. The lifestyle is the basis of our message to the global community. Lifestyle for environment or LIFE, life, let us make efforts to ensure that Mother Earth's precious resources remain available for future generations. In our traditions, we have been offering prayers for peace to prevail in the entire universe. The future of humanity can remain secure only if there is peace in the whole world. In an atmosphere marked by conflicts in many parts of the world, India is spreading the message of world peace. मेरे प्यारे देशवासियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, ओ अमार देशेर माटी तुम्हार पोरे ठेकाई माथा, अर्थात हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं मानती हूँ कि गणतंत्र दिवस देशभक्ति की इस प्रबल भावना को और भी सुदृढ़ करने का संकल्प का अवसर है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हुए अपने गणतंत्र को और भी गौरवशाली बनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपका जीवन सुख, शांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण होगा। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So you just listened to the remarks of special address by the ambassador of the Republic of India right here now is having माननीय राजदूत मनोज भाई वर्मा जी, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। citizens जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष भारत अपने राष्ट्रगान की 150वीं जयंती मना रहा है। इस वर्ष हम सभी भारतवासी अब वंदे मातरम का गान करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के ग्रुप को कि वे आए और वंदे मातरम गाएं और हम सब भी इनके साथ वंदे मातरम गाकर गौरव का अनुभव करेंगे। अवेयर इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप। I think this will be a special performance here. Suhasini,
इंटरनेशनल के दो अध्यापक मिस अंजलि माधवन एंड मिस गीत प्रस्तुत करेंगे। तेरी शान पे सर कोई धन दे क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाज दरिया, मैं तेरा परिंदा, तेरे से दीवानी थी, जहाँ और सुहानी देखी, तो सवरी मेरी शाम हो। कभी याद करे जो समाना, भाती के मर मिट जाना, सूर्य में शामिल मेरा नाम हो। तो देश मेरे तेरी शान पे सर के, कोई धन दे क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू आग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
who's spoken a copyright to any of the songs played in the background and in this live video. Today's 77th day celebration of India, 77th Republic Day of India, and we are currently at the Embassy of India in Monrovia. So if you are following, please share, please likes. Again, we own no copyright for the song playing in the background of this video. India, I love my India. India, India, I love my India. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब अवेयर इंटरनेशनल के अध्यापकों के ग्रुप से मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और एक नृत्य प्रस्तुत करें। So that's it. Another performance is expected to be displayed here. Keep following this live. Again, we are here at the Embassy of India and Liberia, where the citizens are celebrating the 77th Republic Day of India. Again, Facebook, we own no copyrights to these songs played in this live video. Like we rightly said, we are here at the Embassy of India, where they are celebrating their 77th Republic Day.
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हरजोत सिंह एक कविता प्रस्तुत करेंगे। हरजोत सिंह जी। नमस्कार, आप सबको मेरा नाम हरजोत सिंह है। मैं अवेयर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आज आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तिरंगा ऊंचा फहराए, भारत माता मुस्कुराए, शांति प्रेम का संदेश दे, शांति प्रेम का संदेश दे, हर दिल में उजाला छाए। वीरों ने बलिदान दिया, तभी ये भारत महान हुआ। हम उनके सपनों को सच करें, ऐसा प्यारा हिंदुस्तान बना। हम बच्चे हैं देश का मान, पढ़ लिख कर करे पहचान। सत्य सेवा मेहनत अपने भारत को आगे बढ़ाए। एकता में बल हमारा है, हर भाषा धर्म प्यारा है। गणतंत्र दिवस का ये संदेश दे, भारत सदा उजियारा रहे। जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। इन प्रस्तुतियों के लिए हम अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इन छात्रों का भी जिन्होंने इतनी तैयारी करी। अब एक और डांस परफॉर्मेंस है एक छोटी बच्ची लव्या की तरफ से। So this is another performer here. Now it's time for our last performance. As already announced by our ambassador, Shri Manoj Pyari Verma, for the first time, our cultural delegation from Liberia, representing India's world famous Suraj Kund Mela in Haryana this year. The culture is led by cultural ambassador, His Excellency Mr. Tikura Kamara is present here with us today. The group would present today a glimpse of the performance they have planned to perform in India. I would like to invite the group to
to perform and come to the stage. They will make one performance, but there will be three parts to it. So first is the musical instruments or drum calls, which is a traditional musical instrument of Liberia, including the sasa mostly played by the females. Then there is kalin, a wooden cylindrical carved instrument played by men during the breaking of the traditional schools in the western region of Liberia, Cape Town, Bobby, and Barbados Mountains. The third is Samba, which is commonly known as djembe, is an instrument played by male people in Africa. With this, they will also perform Indian dance, but by a Liberian performer. And lastly, there will be a Waya dance. The Waya tribe comes from the Cape Town County. This dance is mostly performed by the women who graduated from the traditional school of the women called Sunday. The Poro is a traditional school for men. Now I would invite the group to please come to the stage and perform their traditional dances. Please welcome the group with a round of applause. So that's it. Those who are singing here now are the Liberian dancer. So that's a traditional display of Liberian culture. So we are still
So that's it. Got your comments together.
Thank you, Ambassador Chekura Kamara, Father, Ambassador. for this wonderful performance. आप सभी का इस समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप सभी मेजबान के लिए आमंत्रित हैं, कृपया मेरी दाई को प्रस्थान करें। So that's it. This is photo time where the ambassador will be having a photo with the Constitution Librarian. So at this juncture, this is how let's call it up in here from the Indian Embassy in Monrovia.